Welcome once again, students. As I already told you, that we will give you all the class-wise topics and chapters of biology, that is class 9th, 10th, 11th, and 12th. So today we are starting class 10th chapters. Our first chapter is life processes. Life processes. So before starting the chapter, we should know what are life processes. Why, what is living and what is non-living. These are the basic concept of the chapter. तो चैप्टर शुरू होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं और लाइफ को हम लिविंग कैसे कंसीडर करते हैं. जैसे कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जानेंगे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट डिसाइड द वेदर अ इंडिविजुअल इज लिविंग और नॉट. उसमें से मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ कि जैसे अगर हम कहते हैं इफ समथिंग इज ग्रोइंग, if something is showing its growth, तब हम उसको मान लेते हैं कि the person or the thing is living. But the growth should be intrinsic. That means the growth should be from inside, not outside. Because in the case of outside, you see a mountain which grows outside to inside. So growth is a parameter. Another important parameter to show something living is metabolic reactions, which means catabolic and anabolic reactions which are taking place in our body. So these are the basic things. Another one is reproduction. If something is reproducing, we can say the thing is living or not living. These are the basic things. So today in our class we are going to discuss about different life processes. So what are life processes? If we say that we are saying a person is living or not, so the person is showing some metabolic reactions. The person is showing some metabolic reactions in its body. The metabolic reactions are categorized in two varieties. That is, first is catabolic reactions and the second one is anabolic reactions. Catabolic reactions are those reactions in which something is breaking down. Something is breaking down to produce something new. And anabolic reactions are those reactions in which something is fusing, that is fusion, that is adding up to form anything new. So in our body is continuously working. Our body is continuously working on these reactions, and these multiple type of reactions are taking in our body. So today we are going to discuss about the different these metabolic reactions, जिनको हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं, जिनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. यानी कि वो सारे प्रोसेसेस जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल सरवाइव कर पा रहा है या फिर हम एक इंडिविजुअल को लिविंग कंसिडर कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोसेसेस हमारे क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं. तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस आता है हमारा जो हमने पढ़ना है, दैट इज न्यूट्रिशन. उसके बाद हम जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में. तो ये चैप्टर बहुत लेंथी है, कहने के लिए सिंगल चैप्टर है बट इसके पार्ट्स हैं मल्टीपल, तो हम सारे पार्ट्स को कवर करेंगे. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, हम काफी हद तक वीडियो एक इसमें आ चुकी है ट्रांसपोर्टेशन की. ट्रांसपोर्टेशन के बाद बात करते हैं हम एक्सक्रीशन की. तो कहने का मतलब यह है कि आपने बाहर से फूड को इनटेक किया अपनी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए. रेस्पिरेशन की मदद से उसकी एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ एटीपी की फॉर्म में. उसके बाद उस एनर्जी का या फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, जिससे कि हर एक सेल तक वो फूड जा सके, क्योंकि हमें पता है हर सेल की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, फूड की. अब उस दौरान कुछ ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए उनका भी एक्सक्रीट होना जरूरी है, बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है. मोस्ट कॉमन इज N2 वेस्ट, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट. तो ये सारी चीजें हमारी किस में कवर हो जाती हैं? एक्सक्रीशन में.
तो आज हम थोड़ा सा कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। हम सब जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज फूड इज रिक्वायर्ड एज वेल एज वाटर। These two things are important for the growth and to survive in the environment. तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम टेकिंग फूड थ्रू माउथ अप टू इट्स एसिमिलेशन। यानी कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद जब वो पूरा एसिमिलेट हो गया, आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होकर उसका यूटिलाइजेशन हो गया, तो खाना लेने आपकी बॉडी के अंदर खाना जाने से शुरुआत होकर और उसके पूरा कंप्लीट एसिमिलेशन तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं ये हम ले रहे हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फूड, कि हम फूड की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। तो दीज आर द टू बेसिक डेफिनेशन दैट इज न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में आपके जैसे वाइटामिन्स हो गए और मॉलिक्यूल्स हो गए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हो गए, या फिर हम बात करते हैं हम किस फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स as well as proteins as well as fats. So these are the basic forms, जो छोटी फॉर्म हम कह सकते हैं जिस फॉर्म में फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है या एसिमिलेट हो रहा है। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है हमारा। सबसे पहला होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि दिस इज अ मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि जो सन है उससे एनर्जी ले रहे हैं प्लांट्स, और CO2 ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, वाटर ले रहे हैं सॉइल से, और क्या कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। Very important topic, that is photosynthesis. That is, photo means light and synthesis means to produce. So you can say कि photosynthesis is a process of preparation of food, preparation of food with the help of लाइट। या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है? प्रिपरेशन ऑफ फूड। और एनर्जी आपको कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। और जो आपको CO2 है वो कहां से मिल रहा है? एनवायरनमेंट से मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एज अ बाई प्रोडक्ट। गॉट इट? सो तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। Organism prepares its own food with the help of multiple components, and these components are CO2, water, sunlight, and the most important thing that is present in the plant, that is chlorophyll. Chlorophyll एक ऐसा पिगमेंट है जो कि हमारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्प्शन के बाद चला रहा है इस प्रोसेस को आगे। अब थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम डिटेल में जान लेते हैं कि कहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है फोटोसिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस जो हम जानेंगे अपना 10th लेवल तक का ही जानेंगे, जिससे ज्यादा हमसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाए। तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले बात करेंगे कि कहां पर होता है, लीफ में होता है। लीफ में क्यों होता है, बिकॉज लीफ में ही एक सब्सटेंस यानी कि एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, विच इज अ प्लास्टिड। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरो the pigment which helps in absorption of light, the pigment which helps in absorption of light is known as chlorophyll। तो आपने क्या बात इंपॉर्टेंट समझनी है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये लीफ के कौन से सेल्स में होता है, मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। लीफ के कौन से सेल्स में प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। और इसके अंदर एक पिगमेंट है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। कहां पर, मोस्टली लीफ में हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेम में भी होता है यंग प्लांट्स की, बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर। और प्लांट का ग्रीन कलर किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफिल की वजह से, जो कि कहां पर है, क्लोरोप्लास्ट में है। और क्लोरोप्लास्ट कहां पर है, प्लांट के मेसोफिल सेल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं। देखिए कि हमें एक लीफ का सेक्शन दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी का ही है। अगर हम बात करें सीबीएसई की एनसीईआरटी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमें ये जो दे रखा है डायग्राम, इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो इसमें देखिए हम क्या क्या बता पा रहे हैं कि ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ की मिडरिब हो गई ये वाली, ये जो जा रही है, ठीक है, ये वीन्स हो जाती हैं इसकी। उसके बाद ये जो फ्लैटेंड पोर्शन होता है इसको हम लमाइना बोलते हैं या ब्लेड बोल देते हैं। गॉट इट। जब इसके ये वाले सेक्शन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं ये तो अपर एपिडर्मिस हो गई, इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर हो गई। उसके बाद ये जो रीजन है यहाँ पर, ये मीजोफिल सेल है, इसके अंदर आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ photosynthesis. The number 1 is absorption of light by chlorophyll, यानी कि जो आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूल क्लोरोफिल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, that is conversion that is conversion of light energy into chemical energy and splitting of H2O। Got it। लास्ट आता है हमारा रिडक्शन ऑफ CO2 into कार्बोहाइड्रेट्स, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे, जो मेजर स्टेप्स हैं अगर हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमारे सामने बहुत सिंप्लीफाइड रिएक्शन आती है, 6 CO2 प्लस 12 H2O gives C6 H12 O6 plus 6 O2 plus 6 H2O। और यहां पर हमारी 2 चीजें आने वाली हैं, एक तो क्लोरोफिल और दूसरी चीज हमारी आने वाली है यहां पर, दैट इज सनलाइट। तो आप समझ जाइए कि CO2 और H2O की मदद से क्या बन रहा है, ये ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है,
ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। और खास बात ये देखिए आप, ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। और ये जो हमारा O2 रिलीज हुआ है यहाँ पर, दैट इज फ्रॉम वाटर। ये जो O2 रिलीज हुआ है हमारा, ये कहां से आया है? वाटर के मॉलिक्यूल से हमें मिला है। गॉट इट? सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन ऑफ अ photosynthesis and this is all about the photosynthesis। अब खास बात यहाँ पर यह है कि जो CO2 है जो कहां से आ रही है? हमारी एनवायरमेंट से आ रही है। कहां से आ रही है? एनवायरमेंट से जो CO2 आ रही है वो किसके थ्रू प्लांट्स में एंटर हो रही है? तो यहाँ पर एक बहुत बेसिक सी चीज है, लीफ के स्ट्रक्चर पर आपको दिखाई देती है, दैट इज स्मॉल माइन्यूट पोर्स। दीज स्मॉल माइन्यूट पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो माइन्यूट पोर्स है इनको हम क्या बोल रहे हैं? स्टोमेटा बोल रहे हैं। तो ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, इसके थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी कि CO2 अंदर जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। ऑक्सीजन बाहर आ रही है और CO2 अंदर जा रही है। ये जो दो सेल्स आप देख रहे हैं, दीज सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स। ये ओपन और क्लोज होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। ओपन एंड क्लोज, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। जब जरूरत नहीं होती है गैसेस की तो ये क्लोज हो जाते हैं, बाकी ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके आसपास के जो सेल्स होते हैं, दीज आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स। और ये जो ओपनिंग है इसको हम बोल रहे हैं स्टोमेटल पोर। और आसपास के सेल्स जो देख रहे हैं आप, दीज आर एपिडर्मल सेल्स। कौन से सेल्स हैं ये? एपिडर्मल सेल्स हैं। Got it? So this is the basic structure of a stomata। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप का न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। सिंस देन आप इसको देखिए वीडियो को, और जो भी डाउट हो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।